Welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic from chapter 1. And in last class you have seen reproduction in living organism, that was sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, so today we will see reproduction process, reproductive phase and events in sexual reproduction. Okay, before these topics I want to ask, I hope all of your concept is clear. Okay guys, and you also try to learn and I will also try to my best to make you understand. Okay guys, so I hope all of you were good. Okay, now going to the main topic. What are the overviews of these topics? Today we will see reproductive phase, in which we will see menstrual cycle and menstrual cycle. Okay guys, then events in sexual reproduction. Okay, so pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Okay, I will explain in detail one by one. So comes to the point. So reproductive phase. In reproductive phase, first your menstrual cycle, and it occurs in monkeys, apes, and human beings. So menstrual cycles consist of three phases: menstrual, proliferative, and secretory phase. Okay, menstrual cycles, it is from 1 to 5 days. Then proliferative, this is 6 to 11 days. Okay, and then this is the secretory phase. Okay, so in menstrual cycle, proliferative, estrogen, it takes place in the presence of estrogens, that are the hormone, and here estrogen and estrogens. Okay, so we will see in next slide in detail, and this is the very specific period of puberty in female. So blood flow in the last few days of the cycles. Okay, then its endometrium wall is broken down and then menstruation is start. So female does not permit copulation during the menstrual phase of the cycles. Okay, in this case everyone avoid to copulation process. Okay, and we should avoid everything. So you can see here, this is a cyclic period of menstruation cycle. Okay, 28 to 1. Okay, so this is the this occupies whole three phases, right? So I hope this concept is clear. Now moving to the next point. See here, phases of menstrual cycles: menstrual phases, proliferative phases, and secretory phases. Menstrual phases, yeah, it takes place 5 to 7 days. Okay, and in this situation, in this time, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाते हैं. जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स, इनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, और जो इनकी जो डेज होती है पूरी 5 to 7 डेज तक चलता रहता है. ठीक है, एंड दिस इज द मेन पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, देन प्रोलिफरेटिव फेज. इन दिस कंडीशन एस्ट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, उसका लेवल जो होता है बढ़ जाता है. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ठीक है, और प्रोलिफरेटिव में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि जो इंडोमेट्रियन वॉल उसने टूटा था उसको भी क्या करना है, रिन्यू करना है, उसको भी फिर से तैयार करना है. सो दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन इज नेसेसरी. देन सेक्रेटरी फेज. इन दिस कंडीशन प्रोजेस्टेरॉन का जो है अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, और इंडोमेट्रियम जो होते हैं फिर पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं. एंड देन फेज कॉन्सिड विद द ल्यूटियल फेज. ठीक है, इसी को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं. और दिस इज द लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल.
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका अमाउंट क्या गया, बढ़ गया, एंडोमेटेरियम फिर से बन गया। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो एंडोमेटेरियम वॉल है वो टूट जाता है, तभी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और उस कंडीशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रोलिफेरेटिव जो होता है एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है। Okay, you can see with the help of diagram. This is the menstruation cycle, men's period 0 to 7. Then proliferative. In this condition, estrogen increases. In this condition, progesterone and estrogen decreases. यहाँ पे एस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। एंड हियर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और एंडोमेट्रियम वॉल जो होते हैं वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से क्या करना होता है, रिन्यू करना रहता है। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। राइट, थैंक यू। लेट्स सी ओएस्टर साइकिल्स। सो ओएस्टर साइकिल्स जो होते हैं, इट कम्स अंडर द मैमल्स, इट कम्स अंडर द मैमल्स लाइक नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, वी आर प्राइमेट्स बट काउ, शीप एंड रैट, डॉग्स, दे आर द नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, जो ओएस्टर साइकिल्स होती है वो नॉन प्राइमेट्स में ही होते हैं। सो काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। देन इनकी जो ओएस्टर साइकिल्स होती है वो 12 to 24 आवर्स की ही होती है। ठीक है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं 5 डेज 6 डेज तक होते हैं। ठीक है, इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है कितने तक, 12 to 24 आवर्स, जो पैसिव पीरियड के दौरान फॉलो किया जाता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन द साइकिल्स एंड द ब्रोकन एंडोमेटेरियम इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, जब ये एंडोमेटेरियम वॉल ब्रेक डाउन होते हैं उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन इसमें ब्लड का फ्लो नहीं किया जाता है। Plant and animals hormones responsible for the transition between the different phases of the life cycles. इसमें जो होते हैं, चाहे वो प्लांट के केस में हो या एनिमल के केस में हो, ठीक है, इसमें हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंड दैट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टर साइकिल्स। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही हार्मोन्स के बीच में, हार्मोन्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज ऐसा होता है कि उनको सीजन से ही पता चल जाता है कि इस सीजन में क्या होता है, ब्रीडिंग होता है, इस सीजन में मेटिंग होता है। ठीक है, ऑल दिस केसेस। सो जब उनके बॉडी से हार्मोन सीक्रेट होता है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें कम्युनिकेट करते हैं एंड इन दैट कंडीशन दे ट्राई टू मेट। ठीक है, सो एट दैट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज फुलफिल्ड। ओके, सो दिस इज द oyster cycles comes take place in the non-primates, cows, sheep, rat, deer, dogs, tigers. Then it happens only 12 to 24 hours. After then it will be completed. Then इंडोमेटेरियन वॉल जो होते हैं वो ब्रेकडाउन तो होते हैं लेकिन रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है। इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है, जब इनके बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जब ये इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन oyster cycle. Right, so now moving to the next point. Let's see flow charts of events in the sexual reproduction. ठीक है, so ये देख लीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन दैट इज रिलेटेड टू द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, formation of gamete that is known as gametogenesis. ठीक है, and this start before reproductive before fertilization. All the process that happens before fertilization is known as pre-fertilization. ठीक है, and that gametogenesis, formation of gamete. ठीक है, फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, एम्ब्रियो होता है। सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं और यहाँ पे गैमेट बनते हैं। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट्स ऑफ सेक्सुअल इवेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, ऑल द इवेंट्स प्रियर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी और उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो एडोलेसेंस में चेंज हुए, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो,
जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कब, उसके पहले हर तरीके से तैयार हो जाए ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। जो भी इवेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो होते हैं एक तो गैमेट गैमेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा जो होते हैं गैमेट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में टू मेन इवेंट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। लेट्स सी, gametogenesis is the process of formation of male and female gametes. Gametes are haploid cells which may be similar or dissimilar in structure. ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ये होते हैं या तो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, और या तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे या तो डिसिमिलर होंगे, लेकिन दे ऑलवेज हैप्लॉइड। जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। देन जो गैमेट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो दोनों में जो स्पर्म और एग जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सो कांटेक्ट में तो आते हैं लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सो गैमेट ट्रांसफर इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ थ्रू वाटर, एयर, इंसेक्ट और पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, और बाय द फिजिकल कांटेक्ट आल्सो। जो गैमेट का ट्रांसफर होता है एक तो फिजिकली होता है और एक जो होते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा होते हैं। और पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, that is known as pollination. In next class we will see in detail. ठीक है, सो पॉलिनेशन भी जो होते हैं उसके लिए भी फैक्टर चाहिए क्योंकि पॉलिनेशन तो ऐसे हो नहीं जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन तो ऐसे होंगे नहीं। ठीक है, पॉलिनेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दैट फैक्टर्स आर द वाटर, एयर, इंसेक्ट, ठीक है, एंड बाय द फिजिकल कांटेक्ट। ओके गाइस, सो राइट, दिस इज द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट contact or indirect contact. Okay, so I hope pre-fertilization ये आपके क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, तो जो गैमेट जो बनते हैं वो तो एक तो आइसोगैमेट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, हेटेरोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैमेट्स, गैमेट्स तो हमेशा अप्लाइड होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स बनते भी हैं वो तो एक तो आइसोगैमेट्स होंगे या और दूसरा क्या होंगे, हेटेरोगैमेट्स होंगे। आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो कहाँ आता है, एल्गी में। देख लीजिए, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द एल्गा, एल्गा इसका नाम है क्लेडोफोरा। ठीक है, दिस इज द एल्गा, इट इज लुकिंग लाइक सेम, so this is the isogametes. ठीक है, this is the heterogametes। और heterogametes क्या है, फ्यूकस प्लांट का जो gametes है वो heterogametes होता है। ये भी एक एल्गा का पार्ट्स है। and this is the ovum and this is the sperm of human beings. So you can see here it is easily visible. This is the heterogametes, this is also heterogametes and this is the isogametes. Okay guys, so gamete का जो फॉर्मेशन होता है वो टू टाइप्स का होते हैं, एक तो होंगे आइसोगैमेट्स, दूसरा क्या होंगे, हेटेरोगैमेट्स। नाउ so I hope this is clear point, your point is clear, you also try to understand, right? Now moving to the next, see fertilization. ठीक है, so you better know the fusion of male and female gamete, that is known as fertilization or syngamy. ठीक है, fertilization क्या है, the fusion of male and female gamete or when male and female come in contact to each other, ठीक है, they fertilize, that process is known as fertilization or syngamy. तो इसमें जो होते हैं डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पे जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा था प्री फर्टिलाइजेशन में, उसमें क्या थे, गैमेट हैप्लॉइड थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब गैमेट बनेंगे तो दे विल बी डिप्लॉयड। The process of development of new organism without fertilization of male gamete, that is known as parthenogenesis. ठीक है, आपको ये भी पता है कि कुछ में तो फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोजेनेसिस occurs in the honeybee, rotifer and lizard. This is the wall lizard. ठीक है, so honeybee, rotifer and lizard and banana. If you are saying in the case of plant,
So that is the banana, where parthenogenesis process take place. The process of formation of male or female gamete without fertilization, that is known as parthenogenesis. And the best example is honeybee, rotifer, lizard and banana. Right? So I hope ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी. Now moving to the next point. See here, fertilization further divided into two main parts, external as well as internal fertilization. So external fertilization, what do you understand by external fertilization? The fertilization which take place outside of the gametes. The fertilization which take place outside of the gametes या offspring, that is known as external fertilization. And if you are talking about the internal fertilization, the fertilization which take place inside the body. ठीक है? The fertilization which take place inside the body, that is known as internal fertilization. You can see here the fish. ठीक है? जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है. एंड जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है. क्योंकि एक्वेटिक में जो होते हैं वहां पे वो लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाटर बॉडी में अपने एग को क्या करते हैं? ले करते हैं. ठीक है, एंड देन दे फर्टिलाइज. यू कैन सी हियर दिस इज द ओवा एंड दिस इज द स्पर्म. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन द सैल्मन. दिस इज द फिश नेम. द फीमेल डिपॉजिट हर ओवा ऑन द रिवर बेड. ठीक है, इसमें जो सैल्मन फिश है वो अपने रिवर बेड पे क्या करती है? अंडे को देती है. एंड देन मेल देन डिपॉजिट दिस स्पर्म इन द वाटर एंड देन स्विम टू फर्टिलाइज द ओवा. ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे अपने अपने स्पर्म और एग को ले करते हैं और उसके बाद से वो वहां से मूव कर जाते हैं. हम दोनों जो स्पर्म और एग है ओवम है, ठीक है, वो आपस में मेट करते हैं, मेट करके फर्टिलाइज कर लेते हैं. So this is the external fertilization and you can see here this is the internal fertilization. You can see here this is the testicles यानी testis, sperm tubes हो गए. ठीक है, ovarian tube हो गया and this is the ovary. ठीक है, so this is the internal fertilization. So the fertilization between cock and hen, that is the example of internal fertilization. Right? So I hope ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी. Now moving to the next point. Let's see, guys. Today we have seen different types of reproductive phase, that are the menstrual cycles and oestral cycle. Menstrual cycles take place in the human beings, apes and monkey, and whereas oestral cycle take place in the cow, non-primates, cow, sheep, buffalo, dog, etc. Then zoonids we only see two, pre-fertilization and fertilization. ठीक है, rest we will see in the next class. Okay guys, so take care. Good. Thanks. Stay safe, stay healthy. Okay, good luck.